Very good morning, children. You're most welcome in class 11th accountancy. Just yesterday, this one is the topic that is going on, ledger posting. So my dear children, I will explain for the sake of you what is the procedure of posting the transactions into the ledger of purchase book. So this one is the class 11th accountancy, and we are going to post posting into the ledger from purchase book and sales book. मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये डबल एंट्री सिस्टम में जो भी अकाउंट डेबिट होता है उसे डेबिट में, जो क्रेडिट होता है उसे क्रेडिट कॉलम में लेजर में पोस्टिंग किया जाता है। लेजर हैज़ द टू इक्वल पार्ट. Left hand side is called the debit and right hand side is called the credit. So my dear children, in purchase book, first we have to prepare the purchase book, total purchase and what are the parties from whom the goods have been purchased, recorded in the purchase book. With the example, I would like to tell you the posting into the ledger of purchase book. First, we are going to prepare the purchase book. For example, just draw the line of the purchase book. Draw the line of the purchase book. My dear children, first column, this one for the date, second column, name of supplier, third column, invoice number, fourth column, ledger folio number, and fifth column, that is details. And this one is the last column for the amount. This one is the purchase amount. With the help of the transactions just written in the total of the purchase book and what are the parties, just the accounts are opened in the ledger book. Suppose that 2016 January 5 purchased goods from you are the furniture seller, ट्रेडर, आप फर्नीचर के व्यवसायी हैं बेटा और आप फर्नीचर खरीदते हैं राम एंड सन से जनवरी 5 को, तो यहाँ पर नेम लिखेंगे राम एंड सन्स, राम एंड सन्स।
20 chairs at the rate of 500 chairs. Just you can write 10,000 in detail. Ten tables at the rate of 800 per table. So 10 table multiplied by 800. So you can write over here 8,000. Again the information given, just 10% trade discount. This one is the list price and you are allowing the trade discount of 10%. So you can write over here less trade discount 10%. 10%. So this one is the amount, total amount. The items or goods are purchased from Ram and Sons. 18,000 list price, less trade discount 10%, 1,800. 18,000 of so in amount column 0, 0, 2, 16,200. 1,800 deducted from the 18,000. क्लियर? मतलब जो हमने खरीदा, कुल खरीद हमारी लिस्ट प्राइस की बेटा 18,000 की हुई और 18,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 10% हमने माइनस कर दिया तो 16,200। अब चलिए आगे खरीद करते हैं। दो पार्टी एग्जाम्पल पर ही हम बताएंगे आपको। ऐसे ही जितनी पार्टियां रहेंगी उसमें आप करेंगे 10 जनवरी को आप फैशन फर्नीचर फैशन हाउस कोलकाता, फैशन हाउस फर्नीचर फैशन हाउस न्यू दिल्ली या कोलकाता, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। राम एंड सन्स जयपुर, यू कैन राइट। So my dear children, फैशन हाउस कोलकाता, फैशन फर्नीचर हाउस कोलकाता का आपने वहां से खरीदा क्या? सोफा सेट, 10 सोफा सेट at the rate of 5,000 per sofa set, So you can write 5,000 multiplied by 10 is equal to 50,000. Less trade discount, आपको मिला
Suppose that 5%. $2,500. 50,000 का 5%. 50,000 into 5/100 is equal to 2,500. Just this one is the amount. 0, 0, 10 में से 5 गया 5. 47,500. Suppose that two parties, अभी मुझे सेल्स बुक भी बताना है आपको, तो दो पार्टी हो गई, आपने इसको टोटल ऐड कर दिया. जीरो 63,700 total purchase given. So you can write here purchase amount debit. Purchase amount debit. All right. Now just we are going to open the ledger. Suppose that you have prepared the ledger. Ledger column just having two equal side. You can see over here, I think. Suppose that here is this one is the ledger. You can see amount, JF, date. This one is the amount column and journal folio and date. This one is the debit and credit. You can write over here date, particular, JF, journal folio number, amount, date, right hand column, particular, journal folio number, amount. This one is the purchase amount. Purchase amount. Date, this one is the month of January, so oftenly you can find the total of the month in purchase book. जो 31st January. 31st January. Purchase always debit. So you can write total purchase 63,700 given. So to sundry as per purchase book. This way, this one is written to sundries as per purchase book. Sundries as per purchase book. Purchase book. What's the amount? 63,700. 63,700 की महीने की पूरी हमारी परचेज. ये ध्यान देंगे आप, इस तरह से होगा बेटा. अब जो ये पार्टी है, हमारी दो पार्टी का हमने एग्जाम्पल दिया है, राम एंड सन्स जयपुर और फैशन फर्नीचर हाउस कोलकाता. इन दोनों पार्टी का अकाउंट खोलेंगे तो इनका जो टोटल आया वही हम उसमें लेजर में पोस्ट करेंगे. अब फर्ज करो हम यहाँ पर अकाउंट खोल रहे हैं किसका, आपका राम एंड सन्स अकाउंट. जस्ट यू कैन राइट ओवर हियर राम एंड सन्स
account. What comes in debit? Purchase outlet debit. Purchase account debit to Ram and Sons. So you can write this one is the creditor. So beta buy purchase. On date, just you have to mention the date on 5 January 2016. 2016 January 5. Just you can write buy purchase. Buy purchase. The amount of the particular 16,200. 16,200. Very simple. हमने कितने का कुल सामान खरीदा है राम एंड सन्स से? 16,200 रुपए का। तो राम एंड सन्स का जब अकाउंट खोला आपने तो हमारे वो क्रेडिटर हुए, क्रेडिट कॉलम में बाई परचेज करके क्या हमसे किया है हमने, वो ट्रांजैक्शन हमने लिखा। सेम वे में आप लिखेंगे, इनका अकाउंट खोलेंगे, आप फर्ज कीजिए इसका जो दूसरी पार्टी है फैशन फर्नीचर हाउस। फैशन फर्नीचर हाउस कोलकाता का अकाउंट आपने लिखा ऐसे सेम प्रोसीजर। जिस डेट को है 10 जनवरी को है, आपने 2016 10 जनवरी डाला और बाई परचेज। इनसे कितने का खरीद किए हैं, ये दूसरा चीज है 47,500। 47,500। This way the ledger posting is made. Posting of sales book. In sales book, suppose that this one is the sales book. On the contrary, means you are the trader and top of the sales book. यहाँ नेम ऑफ द कस्टमर के स्थान पर आपने लिख दिया नेम ऑफ सप्लायर। नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर के स्थान पर लिख दिया आपने नेम ऑफ कस्टमर। यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। अब आपने बेचा है राम एंड सन्स को। राम एंड सन्स को आपने बेचा है कितने का, सारा कुछ ये 20 चेयर 500 पर चेयर के हिसाब से, 10 टेबल से 100 पर चेयर के हिसाब से, ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपने 10% का, तो 16,200 की आपकी सेल हो गई। किसको? क्रेडिट सेल राम एंड सन्स को। सेम वे में फैशन फर्नीचर हाउस को आप फर्नीचर के विक्रेता हैं, आपने सप्लाई किया 27,500 रुपए का माल बेचा है। अब यहाँ पर आपने सेल्स बुक, परचेज अकाउंट की जगह पर आपने सेल्स अकाउंट खोला, तो यहाँ पर क्रेडिट कॉलम में सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, लिखेंगे उसी डेट को बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। ये टोटल अमाउंट 263,700 का। मतलब इसी एग्जाम्पल को हमने उल्टा कर दिया। अभी आपने उन पार्टियों से खरीदा, अब मान लीजिए उन्हीं पार्टियों को आप सेलर है सप्लाई दिए, बेचे, तो ये हो गया आपका। अब आप उनका अकाउंट खोलेंगे। राम एंड सन्स को आपने बेचा है 16,200 का, तो सेल हमेशा वो डेटर होते हैं सेल के रूप में। ये जो क्रेडिट कॉलम में बाई परचेज लिखा हुआ है, आप डेबिट कॉलम में 2 सेल्स करके 16,200 रुपए राम एंड सन्स में लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार आप 47,500 रुपए 2 सेल्स करके आप डेबिट कॉलम में फैशन फर्नीचर हाउस कोलकाता के नाम डाल देंगे। अगर जो कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और कहीं भी परेशानी आवे तो आप कर सकते हैं। जैसे देखें अब सेल हो गया, तो हम यहाँ पर आपको
सेल्स बुक बनाकर दिखा दे रहे हैं इसका। ये सेल्स बुक हो गया। सेल्स बुक में आप सेल्स अकाउंट खोला आपने, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट आपने खोल दिया। ये हो गया बेटा, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, जनरल फोलियो डेट का कॉलम। अब आपने डाल दिया उसी तरह से, आपने कितना आया है आपका सेल्स, क्रेडिट होता है तो यहां पर लिख दिया आपने बाई, ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया, बाई सैंडरीज एज पर, सैंडरीज एज पर सेल्स बुक, सेल्स बुक 63,007। अब उसी पार्टियों का अब्राहम एंड सन्स जिनको आपने बेचा है उनका खाता खोल देंगे और उसके बाद टू सेल्स करके 16,200 रुपए आप अब्राहम एंड सन्स में पोस्टिंग करेंगे और 47,500 आप अगली पार्टी जो फैशन हाउस कोलकाता है, फर्नीचर हाउस, उसमें आप डेबिट कॉलम में टू सेल्स करके पोस्ट कर देंगे। मैं सोचता हूं कि कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी बेटा। इस तरह से आपका लेजर पोस्टिंग आप फ्रॉम परचेज बुक, फ्रॉम सेल्स बुक, दैट इज, एंड प्रैक्टिस करते रहें और जहाँ कोई परेशानी आती है उसे पूछते रहें। थैंक यू।